Social impacts. This is a very important topic. Important in terms that in daily life we are using social media, we are using internet, and we are performing all the activities on internet which is related with us. As a being of a student of computer science, you must to know what are the impacts, what are the causes, what are the things we required to work on internet. There are certain issues which we will cover in this tutorial or video lecture, and I promise you that during this tutorials you will find very connected, because आपको पता है जब हम इनको यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो उसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेगी. जस्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग. लेट्स थिंक देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट. व्हाट डज मीन बाय दैट डिजिटल फुटप्रिंट? हम डिजिटल फुटप्रिंट को समझे. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द फुटप्रिंट्स. Footprint is the impact that is remain when we are walking on sand, or we are running over some ground, dusting ground. So similarly, when we are using the digital platforms, like whenever we visiting websites and we are working on internet, we are submitting the online application, you are using some certain websites, at that time you left some digital information, and this digital information is left by you in a two ways. You can suppose a passive way or active way. Suppose I am visiting some website, I am sending some data. It's mean I am sending my little bit information from my PC to another PC. Or suppose I am searching something on Google website, and means I am giving some idea that what is I am going to be search, or what is I am looking over the internet. So these are the two kind of footprinting. Because you left something, and that left information can be used in a different ways. So a passive digital footprint, it's created when you collected without the knowing the informations. मीन्स जो फाइलें हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम सर्च करते हैं किसी सर्च इंजन के, तो सर्च इंजन क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए मैं गूगल का एग्जांपल लूँ, तो आप जो भी सर्च कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है. सो पैसिव आपको पता नहीं है, बट वो सर्च इंजन रखता है. एक्टिव इज द डिफरेंट थिंग वेयर यू आर पासिंग योर इंफॉर्मेशन डेलिबरेटली. मीन्स मैं जैसे कोई गूगल पे अकाउंट बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाता हूँ, वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाता हूँ, तो पर्सनली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बेचता हूँ कि ये मेरा डेटा है ना. कुछ आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो. सो जहाँ पे आप डेलिबरेटली बताते हैं कि दीज आर द इन्फॉर्मेशन. तो डिजिटल फॉर्म में आप जो अपना डेटा है कलेक्ट. कई बार आपका एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, तो आपके पास राइट हैंड साइड में कुछ वेब एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट्स वही होते हैं जो आपने गूगल पे सर्च किए होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं. सपोज यू आर सर्चिंग सम काइंड ऑफ शूज, सो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ शू काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट you are watching on your another websites. So this is the passive kind of digital footprint and active footprints. Sometimes publishing a blog, posting something on Twitter, or something providing your data to your Facebook, or sometimes you are posting your photos on Instagram. So all are these things collectively giving your personal information or your ideas or your to another website in form of digital footprints. So this is a picture you can see digital footprints. It's depicting the same thing, that is I am going to explain you. Digital footprints, electronic forms data, net and communication attacks. And this is a very much important topic for you, because nowadays there are lot of problems you are being faced on internet.
etiquettes, everybody knows about the etiquettes. These are the code of conducts, these are socially behavior. So whenever you are in a school or in public domain or somewhere in market, everyone expects you to behave in etiquettes properly, and this called as the etiquettes. So whenever you are using the internet and you are, sometimes you can chat to other person, sometimes you interact with other person, sometimes you comment, write down, sometimes, see, I have seen a lot of examples where students are playing multiplayer games and using commenting to each other or talking to each other simultaneously when they are playing the game. So whenever online communication exists, you have to behave in a proper way, and that is the most requirement thing for nowadays, because the society is now, that is not we are watching, the society is now expanded, that is also exists in a virtual environment in terms of internet. So what should we have to do, what are the examples and what are the rules we have to be followed during when we use the communication. For example, you are supposed to be chatting to your friend on WhatsApp, suppose you are talking to your teacher over some platform, or you are talking to your parents over some Skype or any other media. So during this communication you have to be follow certain rules, and these rules are basically for your safety, for the safety of another ones, because these are the comes form of ethics. So internet plus etiquettes is called net etiquettes. You should avoid to posting offensive comment. Huh? You should respect the others people. You don't have to be give a vulgar or negative comments on the photo or video of someone else, because these things you cannot do in real life, so why are you doing the same thing on internet? Never spam to other. Spam is means द मेल, एक ऐसा मेल जिसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं दैट इज नॉट रिलेवेंट, है ना. सो यू आर स्पैम मेल्स, यू डोंट हैव टू सेंड स्पैम मेल्स. स्पैम मेल्स जैसे सकते हैं ना, आपको लॉटरी लग गया, इस तरह की मेल्स नहीं करने चाहिए, या फिर आपको कोई प्राइज मिल गया. शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप. अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो हार जाने पे इतना कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए. दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना. हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स. डोंट ट्रोल द पीपल ऑन द वेब फोरम्स. आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, बिकॉज यू कैन राइट एनीथिंग ऑन योर ट्विटर और फेसबुक, सो डोंट ट्राई टू बी ट्रोल टू अदर पीपल्स. एंड जो भी आप कमेंट करें वो रिलेवेंट होने चाहिए, सोफिस्टिकेट लैंग्वेज में होना चाहिए, और किसी ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए. आपको किसी के नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए. इफ समवन आस्क्स टू हेल्प, यू हैव टू जस्ट गिव द हेल्प ना. अगर आपको ऑनलाइन मीडिया से कोई अगर हेल्प मांग रहा है तो सिर्फ उसको हेल्प कीजिए, उसको परेशान नहीं कीजिए. तो दीज आर द नॉर्मल एटिकेट्स, एंड एटिकेट्स आर नॉट दिस वन ओनली. आपने देखा भी लाइफ में हम जो एटिकेट्स यूज करते हैं, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना, छोटों की केयरिंग करना, ये सभी एटिकेट्स के पार्ट है, और यही चीज़ों को ध्यान में रखें हमें इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना चाहिए, बातें करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज योर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज डेटा प्रोटेक्शन. What is data protections? It's refer the practices, safeguards and building rules put in the place to protect your personal information. Ensure that you remain in control of it. What does it mean? It means, suppose I am sharing my data and this data is used by someone else for harming me or for misbehaving, for mischief, so that should be not happening. Suppose I am providing some data to my any social media, and that social media site is going to be disclose it, and suppose it's going to be disclose it, then what will happen? Your privacy will be going to be, you can say, compromised. So data protection is basically how can I protect my data, और वही इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूं जो मुझे रिक्वायरमेंट. सो वेन एवर यू हैव टू बी शेयर, you have to be very
key. We have to be very focused that what kind of data I am going to be share, and you have to be very much take precautions whenever you are sharing your data, because it may be used by someone else for some another work, and that you don't want to be. So जैसे कि मुझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने घर का पता, मेरी बैंक की डिटेल्स और पासवर्ड्स वगैरह कभी किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? आपको अपना सबका प्रोटेक्ट रखना चाहिए। इवन आपको अपने दोस्तों के साथ भी अपनी पर्सनल लॉगिन्स शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जितने भी प्रोटेक्टेड पासवर्ड प्रोटेक्ट या फिर अपनी डिवाइसेस हैं वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ अनऑथराइजली शेयर नहीं हो। जब कभी भी हम किसी वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें तो ये ध्यान रखें क्या वो वेबसाइट हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फर्दर आगे शेयर करेगा। अगर ऐसा करता है तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। Intellectual property refers to intangible properties that has been created by individual corporation for their benefits. कोई बुक पब्लिश करना, कोई ट्रेडमार्क, कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट, ये सभी आज के फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में भी होते हैं। कोई अनऑथेंटिकली और किसी गलत भावना से अगर इनको चोरी करके अपने नाम से बेचता है तो ये गलत है। सो whenever you are creating your digital property, so the property which you are going to be create means, suppose you are writing any article, suppose you have created any you have a business and you have a trademark and you want to protect them, so you have to be know that what are the intellectual property rights you have that cannot be given to another one. So these are the two copyrights. Industrial properties where inventions, patents, commercials है ना, किसी कंपनी ने कोई कमर्शियल ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं कॉपीराइट और प्रोटेक्टेड बाय द लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। सपोज कीजिए आपने कोई म्यूजिक बनाया या आपने कोई बुक लिखी, तो बुक लिखने और म्यूजिक लिखने बनाने के बाद जो आपने अपना जो डिजिटल फॉर्म में इसको शेयर किया है वो आप नहीं चाहते कि किसी और को चोरी हो, किसी और के पास जाए, बिकॉज दे आर द प्रॉपर्टीज योर, और यही हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। Plagiarism. Plagiarism is not giving author credit after copying that work. बच्चों जाने अनजाने में हम कई बार plagiarism यूज कर लेते। जैसे सपोज कीजिए नेट पे आपको कोई असाइनमेंट मिला, आपके स्कूल से कोई असाइनमेंट मिला, आपने गूगल पे सर्च किया और आपको कोई किसी बुक का कंटेंट मिला, किसी ऑथर का वर्क मिला, कोई पेपर मिला, और आपने उसको अपने आर्टिकल, अपने असाइनमेंट में यूज कर लिया विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। सो दिस इज द केस ऑफ plagiarism. It involves lying, cheating, theft and dishonesty. ना, suppose you are copying the paper or assignment of your another friend. It has two types, accidental और deliberately. एक्सीडेंटल मीन्स आपको पता नहीं है, अनजाने में आपने किसी से कंटेंट में कुछ लिया, आपने अपने किसी दोस्त की किसी डिजिटल फॉर्म में से किसी वर्ड फाइल से या पीडीएफ फाइल से कुछ कंटेंट लिया और अपने उसमें यूज़ किया, या किसी टीचर का वर्क आपने लिया, अनजाने में हुआ, एक्सीडेंटली हुआ। पर दूसरी तरफ डेलिबरेटली होता है और ये काफ़ी हार्मफुल भी है और दैट शुड नॉट बी डन। मीन्स आप किसी ने बुक पब्लिश किया और आपने बुक के कंटेंट्स में से कुछ सिर्फ माइनर चेंज करके एग्जैक्टली सेम कंटेंट्स अपने नाम से पब्लिश कर दिए, सो दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट, इंटेंशनली। यू आर इंटेंशनली डूइंग हार्म टू ओरिजिनल्स। So whenever what we have to do to come over the palace, use your own ideas. First of all, most thing is this: use your own ideas. If you are taking the idea code of someone else, you have to give the reference. Means if you have quoted something, if you are used any picture, if you have downloaded some audio files in your files, so give credit to the original author that you are getting. Just like I am using this PPT to explain from the Python for csip.com.
ठीक है. So cite the name of website and URL where it's used, and so this is some common topics. Now let's see the licensing. License, what does mean by license? You have heard about the license of riding a bike. What does means? You have a bike, government giving you permissions by giving you license that you can ride this bike on roads by following certain kind of rule and regulation and laws. So similarly in digital form, a software is licensed if it is give you permission to use. हम कोई भी आप लोग देखिए अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ये सॉफ्टवेयर जब बनाया तो इसकी लीगल परमिशन, राइट टू यूज एंड redistribution permissions is license. Means whenever you purchase any software that comes with a license, what in this license? This is the permissions. These are permissions. What can you do with this software or what cannot you do with this software? So whenever we buy certain softwares or something like this, softwares, codes, or then we agreed on a license. Software license give you three kind of question answers. जब कभी मैं सॉफ्टवेयर के लाइसेंस हो तो लाइसेंस में क्या लिखा होता है वो बताते हैं कि किस सॉफ्टवेयर को आप कॉपी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हाउ मेनी टाइम यू कैन इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, और कैन यू लुक अंडरलाइन द सॉफ्ट कोड, और वी कैन को सोर्स कोड. मीन्स आपके पास एक गेम लिया, बच्चे जनरली क्या करते हैं एक दूसरे को गेम शेयरिंग करते हैं, पर गेम शेयरिंग की क्या आपको परमिशन मिली है? दैट इज डिफाइंड इन लाइसेंस. फॉर एग्जाम्पल हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्क करने का उसका लाइसेंस दिया है, और लाइसेंस में ये तीन चीज़ों के आंसर्स होंगे. सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, बट ए लाइसेंस कैन गिव यू कि क्या हम इसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कितने बार मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, और इसका कोड क्या है. जो हमारे लाइसेंस है वो इस कैटेगरी से: प्रोप्राइटरी लाइसेंस, फ्री एंड ओपन सोर्स. प्रोप्राइटरी लाइसेंस होते हैं पेड लाइसेंसेस, मीन्स सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट बी गिव यू copy redistribution as freedom as compared to free and open source code. We will discuss this in next few slides. Proprietary license, exclusive right in a software that retain with honor. मीन जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सारे लाइसेंस उसके पास हैं, और वो ही सारी फ्रीडम डिसाइड करता है कि क्या मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जितने भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी की परमिशन देना चाहता हूँ या नहीं. Free and open source softwares. Free and open source softwares, that software that user can safely run, adopt and redistribute without legal restraint. Means ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं विदाउट लीगल रिस्ट्रेंट्स. ठीक है, यहाँ कंडीशंस हैं, बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ नहीं होते. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, मीन्स इनका सोर्स कोड जो है वो बेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, और आप इनको यूज कर सकते हैं, उस कोड को स्टडी कर सकते हैं, कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड अनदर कैटेगरी इज फ्री एंड ओपन सोर्स, अलाउ यूजिंग कॉपिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टडिंग एंड मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर. आप ये सारी ऑपरेशन उस सॉफ्टवेयर के साथ लगा सकते हैं, मीन्स क्योंकि ओपन कोर्स इज ओपनली शेयर्ड. ठीक है. परमिसिव लाइसेंस आर प्रोवाइड रॉयल्टी फ्री लाइसेंस, मीन्स यू कैन वर्चुअली डू एनीथिंग विद दिस सॉफ्टवेयर. इन दोनों सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ एक रेस्ट्रिक्शंस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आप मॉडिफिकेशन के बाद, पर परमिसिव लाइसेंस जो होते हैं हम उनको कर सकते हैं. क्या ऑपरेशन परमिशन कर सकते हैं? कॉपिंग, मॉडिफाइंग, मर्जिंग, पब्लिशिंग, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, सब लाइसेंसिंग. मीन हम उसका अपना
मेन सॉफ्टवेयर में चेंज करके अपने नाम से फिर से लाइसेंस बना के भी उसको सेल कर सकते हैं. दैट कैन बी डन बाय द परमिसिव लाइसेंस. द कॉपी लेफ्ट लाइसेंस. कॉपी लेफ्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉपी राइट. कॉपी लेफ्ट मीन्स there is no license. Means you can use this software, or you can modify this software because there is no copyright to anyone. See, copyright is a form of protections to give the authors of original work of ownership. ये बताता है कि जो आपका डिजिटल थिंग है, वो सॉफ्टवेयर या कंटेंट या बुक जो भी है, वो किसकी ऑनरशिप में है, हु इज द ऑनर. और ये प्रोटेक्शंस किसका, सो इट्स गिव यू प्रोटेक्शंस. इफ यू हैव अ कॉपीराइट ऑफ एनी डिजिटल कंटेंट मींस दैट इज योर ऑनरशिप. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, proprietary companies to prevent unauthorized copying of their softwares. Suppose you have created a software and you find that this software is lying with you only, you can sell it, and you don't want to it's published, and you want that this software will work when you give the license to owner. So you have a right, and that right is software right is your copyright to your softwares. So copywriting of software means आप ये तीन चीजें बता सकते हैं, कितनी कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन परमिशन और मॉडिफाइंग. मीन्स अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो ये चीजें आप परमिशन करेंगे, या मैं सिंपल बोलूँ, ऑनर ये बताएगा, ऑनर विल एक्सप्लेन हाउ मेक द कॉपीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफाई इट्स. So we are now moving another important thing, and that is cybercrime. Day by day we are going to be victimized by the cybercrimes, by known or unknown way. हमें पता भी नहीं होता, और ये आज के टाइम में साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है या फिर इतने इसके विक्टिम्स बनने लगे हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है. Cybercrime is an illegal behavior that done through the electronic operations that target and security of computer system and the data processed by them. वो सारे क्राइम जो डिजिटल फॉर्म में किसी भी कंप्यूटर को या तो टारगेट बनाकर या टूल बनाकर किए जाते हैं, वो सारे के सारे साइबर क्राइम. इट्स एन ऑफेंस. ये एक ऑफेंस है. ये ऑफेंस कौन कौन से हैं? कुछ कॉमन है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट करना, किसी और के आइडेंटिटी का यूज करके अपने आइडेंटिटी से शेयर करना. अनऑथराइज कंप्यूटर एक्सेस, किसी कंप्यूटर को विदाउट टेकिंग द परमिशन आप एक्सेस करते हैं, या हम कोई भी पर्सन यूज करते हैं. ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन फ्रॉड, एटीएम पेमेंट्स का ट्रांजेक्शंस, ऑल आर कम दिस इज वेरी बिग क्राइम सिनेरियोस. आप समझिए, ना तो कंप्यूटर का हेल्प से हम क्राइम कर सकते हैं, ना ही इसका टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं. इसको विक्टिम नहीं हो सकते. सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड आपके फोन लेकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेता है, दैट इज अ क्राइम. या फिर कोई इनलीगल, जैसे आपने देखा भी होगा, कोई आपसे अगर गलती से आपको स्पैम भेज के, फिशिंग का मेथड यूज करके आपकी ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, कुछ परचेज कर लेते हैं. दिस ऑल कम्स टू द साइबर क्राइम. एक्सटॉर्शंस अगेन ए साइबर क्राइम. So there are some type of crimes. Let's discuss. One is called denial of service attacks. What it does? It target a computer network or device. Means it give you excessive requests. Suppose you have created a website and someone कोई है जो आपकी वेबसाइट पर एक बहुत सारी रिक्वेस्ट एक बार में इश्यूज कर दे, मतलब किसी एक पेज को एक रिक्वेस्ट करने लगे क्लिक कर. सो क्या होगा आपकी, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ बैंडविड्थ, सिस्टम बैठ जाएगा. दिस इज कॉल्ड डेनियल ऑफ सर्विस. सर्विसेज नहीं दे पाएंगे. मैं सपोज कीजिए एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट बढ़ा दी जाए, और इतनी तेजी से बढ़ा दी जाए कि वेबसाइट की बैंडविड्थ का जो स्पीड है वो है घट जाए,
सो वेबसाइट जो है एक्सेस नहीं हो पाएगी, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज। जैसे और दूसरे टाइप के होते हैं जैसे साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, फ्रॉड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, ये आप लोग जानते ही हैं। साइबर स्टॉकिंग मीन्स यूज ऑफ इंटरनेट सोशल मीडिया फॉर स्टॉकिंग। फिशिंग मीन्स आप अनऑथराइज इंफॉर्मेशन गेन करना, जैसे बैंक की इंफॉर्मेशन निकालना, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन निकालना, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, किसी और के आइडेंटिटी का यूज करना, बुलिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, दीज आर कम्स इनटू साइबर क्राइम्स। So, to protect, to define, or to give a legal system, we have a cyber laws. A cyber law is a part of our legal system that define the internet, cyberspace, and the legal issues. हम ये कह सकते हैं अब क्राइम होते हैं तो क्राइम को रोकने के लिए क्या सजाएं होनी चाहिए, क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या क्राइम कहलाएगा, क्या तो ये लॉज हैं। सो जो लॉ है वो डिफाइन करता है ये सभी चीज़ें, और इंटरनेट क्राइम को डिफाइन और उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शंस के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो कलेक्टिवली कॉल्ड है साइबर लॉज। ये क्या कवर करता है? ट्रांजैक्शन ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे जितनी भी एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस और साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या डिजिटल फॉर्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ये कवर करता है। साइबर लॉ इंडिया में भी है, सभी कंट्रीज में है, जस्ट लाइक एनी अदर लॉ। ये क्या बताता है? ये एक्सप्लेन करता है कि क्या क्राइम है, साइबर क्राइम्स के। ये भी बताता है कि साइबर क्राइम्स अगर होता है तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना। ये सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म, जैसे डिजिटल सिग्नेचर तक की बातें करता है हमारा साइबर क्राइम तो साइबर लॉ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म हैकिंग. Hacking is identifying the weakness of a computer system and exploit it to gain the access. Use password for cracking softwares and the algorithm. कंप्यूटर का मिसयूज, आप कह सकते हो किसी के परमिशन के बिना कंप्यूटर्स को की इंफॉर्मेशन को निकालना, पासवर्ड निकालना, किसी सिस्टम की कम्युनिकेशन को सुनना, किसी और ये सभी सारे प्राइवेसी अटैक्स जैसे कह सकते हैं आप कि किसी के अननोन पर्सन की इंफॉर्मेशन को देखना, स्टेल करना, ये सारा क्या कहलाता है? साइबर हैकिंग कहलाता है। फिशिंग इज अटेम्प्ट टू कैप्चर यूजर्स लॉगिन एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इंक्लूड यूआर स्पैम मेल्स। फिशिंग का एक एग्जांपल समझा। सपोज कीजिए आपके पास, आपने देखा भी होगा, ईमेल पे एक स्पैम मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि आप एक लॉटरी जीत गए हैं और लॉटरी के अगर आपको रकम चाहिए या पैसा चाहिए तो यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट। या फिर दूसरा तरीका होता है कि बैंक किसी फ्रॉड ईमेल आईडी से आपको ईमेल किया जाए और ये बताया जाए कि दिस इज अ मेल फ्रॉम ए पर्टिकुलर बैंक एंड आई वांट टू योर आई एम टॉकिंग एज ए मैनेजर ना। ये इस तरह से जो आपके जो अटैक होते हैं जिनको कॉल्ड एज फिशिंग। फिशिंग मीन्स आपकी यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना विदाउट फेक इंफॉर्मेशन, फेक वेबसाइट से भी। और कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट क्लोनिंग एक टर्म मेथड है जो हैकर्स आजकल यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही एक दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं, बट डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं। यूजर गलती से उस वेबसाइट पे क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो मिसलीनियस वेबसाइट पे चले जाते हैं। बुलिंग, everybody know about the bullying, harassment, but if you are doing this thing, if it's happening on internet, that's called cyberbullying. Cyberbullying, harassment or bullying executed through a digital device like computer, laptop, smartphones. Cyberbullying means that you use the social chat rooms or gaming platform to people, है ना। सो किसी को परेशान करना थ्रू ऑफ SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, इस तरह से धमकी देना, परेशान करना, द सेम, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। इंडिया हैज ए साइबर लॉ एंड दिस साइबर लॉ इज नॉन एज द इंडियन IT एक्ट 2000। ये हमारी पार्लियामेंट ने बनाया, इंडिया की पार्लियामेंट ने बनाया 7 अक्टूबर 2000 को ये पास हुआ।
इंडियन एक्ट आईटी एक्ट जो है ये हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लॉ है इन इंडिया। ये कवर करता है क्या चीजें? इट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। It has a 94 sections that divided into 13 chapter and 4 schedules. What are the crimes? What are the illegal ways? All are defined in this IT Act. It's give you wide range. It gives wide range of explanations. What is digital signature? What is electronic media? What is the digital informations? And what are the illegal crimes and what are the legal use of this information? These are some important sections we will cover here. So these are the some crimes and these are the penalties which is given and explained in a Cyber IT Act 2000. Publishing images containing the sexual act, it the imprisonment of up to 7 years of fine of 10 lakhs. Publishing of child porn, it's imprisonment of 5 years and fine up to 10 lakh. Failure to maintain records, this is for the government offices where the digital form में आपका डेटा रखा जाता है। फेलियर टू रिफ्यूज द कंपाइलर ऑर्डर, अगर कोई इस एक्ट की जो लॉज है इनको सेक्शंस का फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस के लिए क्या होना चाहिए? फेलियर टू रिफ्यूजल डिक्रिप्ट डेटा, अगर कोई अपने डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करता गवर्नमेंट एजेंसी उस केस का अटेम्प्ट। दीज आर द सम important sections. Securing access, attempting to secure access or protections of system, imprisonment of up to 10 years means अगर आप अनऑथराइजली किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स आइडेंटिटी थेफ्ट, आप किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज द मिसरिप्रेजेंटेशन, सो देयर इज अगेन ए क्राइम. There are certain amendments that they were taken place in year 2008. So it's introduced a new sections, offensive messages. ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करना, किसी के दंगे फैलाना, ये अब इसमें that is a part of now cyber crime. Now this is a cyber crimes kind of things and the laws you have understanding. See, in this new world where we are governed with the all digital equipments, they are all are the wastes when they will not use. So what is e-waste? All the electronic appliance, just like computer, mobile phone, digital music recorder, player, refrigerator, washing machine, TVs and any other household items, all are covered in a category of e-waste. आप देखिए हमारे environment में डे बाय डे ई-वेस्ट बढ़ते जाता है. जैसे हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, कुछ सालों के बाद ये डंप हो जाता है, खराब हो जाता है और उसका कोई यूज नहीं रहता. जो कंप्यूटर होते हैं इनमें बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं. ये जो हार्मफुल कंपोनेंट्स केमिकल्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं. अब अगर ये इनको हार्म इतना देखिए होगा कि आपने देखो कि डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक टाइम आता है जब इनको यूज होना बंद हो जाता है तो हम इनको डंप कर देते हैं. जब ये डंप हो जाते हैं तो ये सारे वेस्ट हो जाते हैं और ई वेस्ट कहलाते हैं. और ये ई वेस्ट जो होता है ये इन्वायरमेंट के लिए बड़ा हार्मफुल होता है कि अगर इनको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये इन्वायरमेंट में हार्म हो जाते हैं. सो आज के टाइम में और in future it's very much important you to that how to manage this e-waste. So we will cover all these things in these topics. All the electronic waste, most or less, they have lead, barium and mercury. These are the very toxics.
They are very toxic chemicals. Whenever improper disposal of these gadgets, these toxic chemicals contain the soil and causing air and water pollutions. So ultimately what is happening when we are dumping our electronic gadget, it is somehow creating or causing air and water pollutions. When we drink this polluted water, it can harm us. So improper e-waste is can means it can harm to our environment, to us, to animals. क्या होगा इनसे? बहुत से जैसे इनके कुछ काजेस हैं, इन रिएक्शंस हैं, स्किन डिसीजेज हैं, इम्यून सिस्टम डिसीजेज हैं, मल्टी अलाइनमेंट्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी और सिंपल टर्म्स में कहूँ तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक जो केमिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये कुछ टॉक्सिक केमिकल से बने हैं जो पॉल्यूशंस बनाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हैजार्ड्स हैं. So to overcome we have to be think how can we manage this e-waste. हम डिस्पोज ऑफ करने से पहले, डिस्पोज ऑफ के टाइम, सो रिसाइकलिंग मस्ट बी देयर. ठीक है. सो कैसे करते हैं? फर्स्ट इज दिस मैंटलिंग, मीन्स जो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आइटम्स, इनको निकाल के यूज कर सकते हैं. मेटल को अलग निकालना, प्लास्टिक को अलग निकालना. रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज मीन्स जो कंपोनेंट रीयूज हो सकते हैं, जैसे सपोज ये पीसी के जो की कंपोनेंट यूज हो सकते हैं, उनको दूसरी नई डिवाइसेस बनाने के टाइम यूज कर सकते हैं. डिस्पोजल ऑफ डेंजरस लीड, बेरियम एंड डिस्पोज ऑफ, ये इनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ, इनका एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम इनको प्रॉपरली मर्करी, लीड और बेरियम जैसे टॉक्सिक केमिकल्स को फैक्ट्रीज के अंदर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. इनका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ये किए जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच वर्किंग ऑन दिस e-waste management. They have a technology by which they can manage this e-waste. So there are some problems we are being faced because of excessive use of technology. These are what? Most of us are being surrounded by these. Most of us are being surrounded by these electronic gadgets all the time. Because we are continuously using these electronic gadgets, it can cause certain problems. Just these are some problems we are being facing just because we are excessive using the technology. Most of the time we are carrying our mobile phone, most of the time we are carrying our laptop, tablets and PC. बच्चे भी देखे बहुत सा टाइम अपना, बहुत ज़्यादा टाइम गेम खेलने में, सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें जनरेट हो जाती हैं. टाइम के साथ इनके ज़्यादा यूज़ होने पर ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कन्वर्ट हो सकती है. फॉर एग्जांपल नेक स्ट्रेन, विजन प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द देना, आँखों से कम दिखना, सेंस ऑफ आइसोलेशंस. मैंने देखा है कुछ बच्चों को से अगर फ़ोन ले जाता है तो वो बड़े फील हो जाते हैं, कंटिन्यूसली दे आर सेइंग दैट वी आर बीइंग बोर्ड, ये बोर हो रहे हैं. मीन्स अगर उनको उनके सोशल मीडिया से हटा दिया जाए तो वो अपने आप को एक आइसोलेटेड अलग पार्ट समझ लेते हैं कि दुनिया से जैसे कट गए हों, दोस्तों से हट गए हों. और ये सेंस ऑफ आइसोलेशंस जो है मेंटल स्ट्रेस के कारण भी बनता है, मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, लेट नाइट तक मोबाइल फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना, सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहना, एक्सेसिवली यूज़ करना स्लीपिंग डिसऑर्डर्स कॉज करता है. स्ट्रेस, लॉस ऑफ अटेंशंस. लॉस ऑफ अटेंशंस का सबसे बड़ा एग्जांपल बच्चे आप लोग बहुत देखते हैं. जैसे आप एग्जांपल्स देखिए, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कोई मैसेज आया और आप आधे आती 15 और 30 मिनट्स के बीच में दोबारा से फ़ोन देखने लगते हैं. दिस कॉज एंजाइटी, घबराहट भी होती है, प्रॉब्लम इन सोशल रिलेशनशिप्स,
to individual, internet addict, it has a long series. ये जो प्रॉब्लम्स है एक बहुत लंबी सीरीज में है, इनका कोई, there are so many problems are being generated because of we are using excessively technology. So if you are using this, we have to adopt some mechanism to overcome these problems. We have to be limited use this IT gadgets. We have to understand that there is a time where we have to stop to use these electronic gadgets. We cannot use more than 80, we cannot continuously use 18 or 20 hours. We have to learn a physical exercise, we have to play, we have to be socialize. These are the some thing, some solutions. There's a huge number of problems, so there are a number of solutions also. If you have a very critical problem, if I have a very critical problem, if we are facing some critical problem because of excessive use of IT, we should not bother about to consult with a consultant or any doctor. If you are facing if we are facing some problems, so we have to go for a consultants. If you suppose if you have a disorder of sleeping disorder, anxiety, stress, so we know the problem, so we know the solutions. It's up to us how can we effectively use this problem and solutions. This topic was very huge. I would like to give thanks to Python for csip.com for providing these notes, because I don't have book. During this lecture you faced that this is very much related with your day-to-day life, and you have learned a lot of things from this. What is cyber law and what is crime and what is the impacts. So it is my suggestion to all of you, you have to learn about the cyber crime, what is the cyber crimes, and how can we complain the cyber crime. Just like you can give your FIR to your local police. There are a lot of mechanisms. You can consult with your parents, your teacher, you can talk to your teacher or your principal, school's principal. There are a huge number of people who can help you. So thank you, have a nice day.